Today, I want to talk to the women which want to take their men into therapy. ये जो category of women है that I have seen a lot of them they will come and they'll be telling that हमारी इतनी लंबी relationship थी, हमारा इतना अच्छा चल रहा था, हमारा dating relationship, हम boyfriend girlfriend थे या हम husband wife थे इतने टाइम से, और ये क्या हो गया, हमारी खुशी को किसकी नज़र लग गई या जो भी है. कई बार यहाँ पे कोई जिसे वे कहते हैं साइड चिक इन्वॉल्व होती है, राइट. समवन गॉट इनटू द रिलेशनशिप. जैसे एक केस आया था मेरे पास, उसमें दैट गर्ल वाज टेलिंग कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत अच्छे से लगता है, बट देयर इज दिस गर्ल फ्रेंड ही हैज़ गॉट, देयर इज दिस फीमेल फ्रेंड ही इज़ गॉट, जिसको ये बहुत प्रायोरिटाइज करता है. ये जितनी इज्जत से उसके उसके बारे में बात करता है उतनी तो कभी मेरे बारे में बात नहीं करता है. और उसके साथ हमेशा हैंग आउट करना चाहता है, उसके मैसेज का सबसे पहले रिप्लाई करता है. एंड आई रियली फील दैट शी कैन रन हिम ऑन हर फिंगर्स, लाइक दैट्स हाउ इजी इट इज़ फॉर हर. बट आई एम जस्ट समवन ही वॉन्ट्स टू marry, show to his mom, get his household works done, and tells me कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो या तुम तो बहुत अच्छी बीवी बनोगी. बट प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो उस फीमेल फ्रेंड को दे रहा है. ऑफ कोर्स ये केस अलार्मिंग है, बिकॉज औरत दोस्त होना एक चीज़ होती है, दूसरा होता है कि वो औरत दोस्त के ऊपर आप एक्चुअली आपको क्रश हो. You have some feelings that your wife is able to even sense. you know Whoever this girl was not yet the wife, but she's able to sense, your partner is able to sense that you actually are head over heels when it comes to that person. So you know why not express it? And this, whenever she will say that you met her again, हम लास्ट टाइम कब मिले थे उसका तुम्हें पता नहीं है, वो तुमने कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया इतने टाइम से, और उससे तुम मिलने के लिए ऐसे दौड़ कर जाते हो कितने भी बजे वो तुम्हें बुलाती है. आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल. एज अ वाइफ आई डोंट सी that I am your priority, or I am the one you're devoted to her. I am the one, which you're getting for your family, for your mother, to help her with the chores, right? So it was exactly that. पर यहाँ पे ये लड़की, instead of being unsure about this guy who treats her like this, she was saying things like, so I want him to come to you so he will understand that he's doing something wrong, and so he'll correct it. In this case and in every case, I say the same thing. He doesn't need therapy, you do. Just wait a minute before reacting. When I say this, he doesn't need therapy, you do, I mean is, इसके साथ तो जो इशू है वो है कि लैक ऑफ करेज है, इसको नहीं पता इसको क्या पसंद है, राइट. ये अलग जगह जा रहा है या जो भी कर रहा है. तुम्हें थेरेपी इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि तुम जो है नहीं समझ पा रही हो कि यहाँ पे तुम्हें इस लड़के को सुधारना नहीं है, यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि ही डजंट ट्रीट you like this because he doesn't want to, he doesn't think that you are worthy of that treatment, you are not that special to him. It is as simple as that. I always tell people, like with this kind of non-living example, just कि अगर किसी सब्जेक्ट को आप पसंद ना करें तो क्या वो सब्जेक्ट खराब है? वो सब्जेक्ट बोले कि अंकिता really needs help so she can start liking me, because our relationship should work out, it's not working. No, that subject should just know it's nothing personal, it's just my preference. सेम प्यार में भी है कि अगर कोई पर्सन आपको नहीं पसंद करता है तो वो उस हिसाब से आपको ट्रीट करता है. Or everything you have to do in the relationship as a woman is just observe and act accordingly. That's all. You don't need to lecture anyone. You don't need to tell anyone how to treat you. You don't need to. You just need to observe. How does he treat me? I always tell women that we do not lead a relationship. We just watch how this man leads me in the relationship. How does he love me? And we just ask ourselves this simple question, this smoke is coming from this new incense stick that I've put for the dramatic effect. Actually, just put it for the good fragrance, but yeah, it's coming like that. Anyways, so yeah, so I always tell them that you do not lead the relationship,
You just watch a guy, how he treats you, and you get to decide, do you want to allow this kind of treatment that he's doing to you? You don't want to allow, remove that guy. Simple. As simple as that. You don't start lecturing him. That, I cannot even stand the idea that I would speak to someone and be like, मुझे ऐसे नहीं treat करो, मुझे ऐसे करो. That is so disrespectful to myself. Why would I do that? If that person wanted to treat me better, he would have anyway. Some people going like, what if he doesn't have any clue how to treat you better? What the fuck are you talking about? Do you not know love? Have you never been loved or were in love with someone or something? एक इरेजर भी अगर आप पसंद करोगे ना, उसको भी आप ऐसे प्यार से ऐसे रखोगे, इसको संभाल के रखोगे, अच्छे से कपड़े में रख के रखोगे, उसको देखोगे बार बार, उसको ज़रा सी भी तकलीफ होगी तो आपको ज़्यादा तकलीफ होने लग जाएगी. छोटी सी चीज़ में भी आपको अगर किसी पे भी प्यार आता है ना, इट इज़ दैट यूनिवर्सल ऑफ एन एक्सपीरियंस कि किसी को सिखाना नहीं पड़ता है. ये आप खुद को झूठ बोलते हो कि उसको सिखाना पड़ेगा, उसको समझ नहीं आ रहा है, बेचारे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. अभी जैसे इसको लग रहा है कि इसको मुझे अच्छे से ट्रीट करना नहीं आ रहा है, इसको नहीं पता, लाइफ में कभी कोई रिलेशनशिप ही नहीं रही है, सिर्फ दोस्तों को ही अच्छे से ट्रीट करना आता है, तो वो दोस्त को सारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिए दे रहा है, अपनी वाइफ को कैसे देना है प्रिंसेस ट्रीटमेंट उसको आता ही नहीं है. खुद से झूठ बोलना बंद करें. उसको बहुत अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा, एकदम क्लैरिटी से. पर ये आप डिनायल में हैं. इसी के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है. क्योंकि वो तो कम से कम जो करना चाहता है वो कर रहा है, उसे बस ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है. बट सबकॉन्शियसली इट्स ऑल हैपनिंग. ही इज़ अ मैन, ही विल बी ऑलवेज लीडिंग द रिलेशनशिप. मैन ऑलवेज गेट्स टू चूज which woman, but women always gets to choose also which man she will allow to pursue. एक औरत का डेटिंग मार्केट पूरी दुनिया नहीं है. एक औरत का डेटिंग मार्केट, आई मीन पूरी दुनिया से मैंने बताया पूरी दुनिया के मर्द नहीं है, बट एक औरत का डेटिंग मार्केट सिर्फ है जो आदमी उसे पसंद करते हैं, जो लाइन उसके पीछे लगी रहती है, राइट? वो हमारा डेटिंग मार्केट है. वहाँ में से आप देखो कि which of them I would allow to pursue me further, whose whose message request I'm gonna accept, whose meme I'm gonna react to. Just check. That is where you get to choose. That's where your power is. A lot of girls starts crying like if I tell them कि भाई औरतें don't get to choose the guy, they'll be like वाह अंकिता बहुत बढ़िया, हम तो प्यार ही नहीं कर सकते. अरे दिमाग नहीं है तुम में, that's all. So right, you also get to choose. First of all, become attractive, become magnetic, right? And when you do, they will be aligned. आदमियों की कमी कहाँ है, right? They will be aligned. आराम से, it'll be there. And then you get to choose from where, that line, whom you wanna give a chance, you don't wanna give a chance, what do you wanna take, what you don't wanna take, till where you wanna let him. And after some time, if he has done something that he's failed the audition to be your husband, just kick him out. That's why women are powerful. Men are powerful and they get to decide. अगर एक लड़की है, okay, she wants to have that man around her, she does not get to decide. She gets to be only in power when that man gets in the line. Only when that man gets in the line. That is true. So, if you as a woman are being like कि नहीं मेरा हमारे बीच में बहुत प्यार था पर अब प्यार नहीं है because men are supposed to lead the relationship and your man is not leading this relationship with love anymore. उसका प्यार ख़त्म हो गया है या तो, राइट, या कभी था ही नहीं. आप अभी तक खुद को डिल्यूजन में डाल के इस रिलेशनशिप में आए. ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं. जब मैं उनकी रिलेशनशिप का पास्ट भी सुनती हूँ ना, तभी से मुझे समझ आता है कि यार इसमें शुरू से भी कुछ नहीं था. What were you doing? Why you got into this? Doesn't make sense, right? So कई सारी लड़कियाँ लड़कों का लैक ऑफ लव को कॉम्पनसेट करके खुद ही फूल देने लग जाती हैं, घुटनों पे आ जाती हैं. I mean, makes me sick to think all that, right? So they do all that just to realize you cannot do that for life because you remember ting ting,
Oh fuck, I'm a woman. What the fuck I was doing? Of course. What were you thinking? And that guy will be expecting that from you for life. Then you'll be like, okay, sorry, divorce. Of course, you will be. So you forgot your nature. It can result into things like this, right? And then, for example, that man was loving you, but you didn't let him know कि भाई जिस दिन सो तुम अपने स्टैंडर्ड से जो मेरा स्टैंडर्ड से नीचे जाने लग जाओगे ना, जैसे तुम मुझे अभी रेगुलरली डेट पे लेके जाते हो, जैसे देयर वाज दिस मैन, ओके, व्हेन आई वाज डेटिंग, ही यूज्ड टू से कि शादी के बाद ना सब बदल जाता है, शादी के बाद इतना हम फन नहीं करेंगे, शादी के बाद इतना मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। आई वाज लाइक वेट, देन मैं तुमसे शादी भी क्यों करूंगी? मैं सिर्फ डेटिंग में मजा करके निकल लेती हूँ, और क्या? तो शादी के बाद तो तुम इतना मुझे सीरियस सी एक रियलिटी दे रहे हो, शादी के बाद ये भी नहीं होगा, शादी के बाद वो भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो फुट लो। और क्या है, राइट? इट्स लाइक यू आर टेलिंग मी only trailer is really good of this movie, okay? The trailer is really good. Wow, you're gonna love the trailer. But movie is shit. And movie, असली में अच्छी होती ही नहीं है। ट्रेलर ही अच्छा होता है मूवीज का। मूवी कहाँ अच्छी होती है यार, आजकल होती ही नहीं है। वो चाहना भी बड़ा ही अनरियलिस्टिक है कि मूवी अच्छी ही निकले। ट्रेलर मैक्सिमम हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं आजकल के टाइम में अच्छा दिखाना, पर मूवी नहीं अच्छी होती है। तो मेरे सर पे क्या यहाँ पे पागल लिखा है जो मैं वो मूवी देखने जाऊंगी जिसका सिर्फ खाली ट्रेलर अच्छा हो, मुझे पता भी चल रहा है। मैं भी खाली ट्रेलर देख के आ जाऊंगी ना यार। राइट? तो you would always see a good man. When I say a good man, like, who is purposeful in his life, who knows what he's doing, even with his dating, of course he will be purposeful because he's a purposeful man like that. उसके डेटिंग के एफर्ट्स और मैरिज के एफर्ट्स में जितना कम डिफरेंस उतना मर्दाना वो बंदा। कई सारे नामर्द ऐसे हैं शुरुआत में, ऑफ कोर्स दे आर जस्ट पुटिंग ऑन अ शो, दे आर पुटिंग ऑन अ बिग ब्रांड शो, एंड लड़कियां इतनी डेस्परेट हैं, इतनी डेस्परेट हैं, शो के दौरान ही शादी कर लेती हैं। अरे भाई, शो वाला पीरियड पहले एंड तो होने दो। रिसेंटली अ केस दैट आई सॉ, that boyfriend was putting on a show for 6 damn months. I asked my friend, इतना लंबा शो पॉसिबल है? उसने बोला 6 महीने की बात कर रही है, या 6 साल तक का शो पॉसिबल है, till he gets what he wants. And a lot of time that is like different things. Some just want to get into the pants, some just want to tie a knot with you, marriage, right? Legally you're his, or some just want to see you attached with them. Then you will be having a tough time to let go of him. Each things that each person wants, right? As a woman, I always say, if you do not have the balls to let go of a man when he's not healthy for you, you are not made for a healthy man. Everybody can be, but not you, because you are not a healthy woman. हेल्दी वुमेन का मतलब ही ये है कि अपनी हेल्थ के आगे वो किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, हर उस जगह से निकलती आ जाए जो उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आई वेंट इन टू नो कॉन्टैक्ट विद माई पेरेंट्स बिकॉज वो मेरे लिए हेल्दी नहीं बचे थे। मैं अपनी हेल्थ को लेके इस लेवल तक सीरियस हूँ, राइट? सो दैट जस्ट टेल्स you a lot about me. So if you're a woman trying to get your man into therapy, please you get into therapy first. Let go of him for some time. Let him do. Let him cheat. Let him check out other girls. Let him sleep around. Who cares? For some time, let the focus be on you. When you will learn what you need to learn, when you will learn how to listen to your intuition, when you will learn how to trust your intuition, when you will work with yourself and develop your faith, you will understand you didn't need to even say one word to him. Lecture him into not cheating on you. Lecture him into anything. Check his phone or do any kind of stuff to stop him. Get him into somehow marriage counseling. You don't need to do any of that. You just need to remember who the fuck you are. You have forgotten that. And it's so sad. You've forgotten that. Wake up. What are you doing? जब आप छोटे थे ये सपने देखे थे आपने? एक मर्द होगा, उसको भी बेचारे को 4 जगह से खींच के लेके आना पड़ेगा कि मेरे पास रहे यार, प्यार कर मुझे यार। इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे यार, शक्ल देखो अपनी, इतनी खराब भी नहीं है। इतने बुरे दिन आ गए, इसे खींच खांच के किसी को प्यार कराने के लिए लाना पड़ रहा है तुम्हें। मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं जो दे से कि आप कोई तंत्र विद्या करते हो क्या, मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, सो कैन आई एम लाइक, इतने बुरे दिन आ गए क्या यार, इतने बुरे दिन?
एक पर्सन नहीं है तुमको चाहने वाला, जो सच में चाहता हो, मन से चाहता हो, कि तुम्हें काला जादू करके यार अपने पास एक बंदा लाना पड़ रहा है। यार इतने बुरे दिन आ गए, स्वयंवर हुआ करते थे हमारे लिए, तुम काला जादू से बंदा पकड़ के लेके आ रही हो। और कई बार जब उन बंदों की मैं शक्ल देख लेती तो उसके बाद तो फिर मेरे को रोना ही आ जाता है कि क्या हो रहा है। प्लीज वेक अप टू योर पावर, व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज नॉट द वे. Your kids, even if you've got kids going on in a situation like this, when you're like, oh, my man has a side chick and we have a child and all that, I get it. You'll be like, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, ये पापा चीट कर रहे हैं इनके, बच्चे देख रहे हैं ये सब चीज़ें कि पापा कहाँ से आ रहे हैं, इतनी देर रात आते हैं, पापा किसी से बातें करते हैं फ़ोन पे, पापा मम्मी अब साथ में नहीं है, पापा मम्मी के बीच में कोई रोमांस नहीं बचा, पापा मम्मी के बीच में कोई इंटीमेसी नहीं बची, they don't even hug often, they sleep in different rooms. Of course bacha is watching everything and you're gonna make that as an excuse and be like, अंकिता मुझे लेक्चर देना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। किससे झूठ बोल रहे हो यार आप? किससे झूठ बोल रहे हो? बच्चे को ये नहीं देखना है, बच्चा अगर लड़की है तो और भी ट्रॉमेटाइज होने वाली भी, शी विल सी कि ओह सो दिस इज हाउ यू कीप अ मैन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मैन इज डिस्गस्टिंग लाइक दिस and this is how you keep him? Her love life is already fucked. She's first of all not gonna be around any man, and even if she will be, she'll be like, this is how you keep them. What a pain. She would not choose to marry, she would not choose to do any of this, and even if she will, she will always be expecting a cheating episode to just come around, because that's exactly what her nervous system received as the information कि ये होता है, यही तो होता है, ये तो हमारे माँ बाप के साथ भी हुआ था, तो दिस इज द नॉर्मल, यही तो बच्चा देख के बड़ा हो रहा है. और अगर लड़का ये देखेगा तो हिल भी लाइक, हाँ ओके ओके गॉट इट. सो मर्द आर चीटर्स, वी आर सपोज टू चीट लाइक दैट, ओके गॉट इट. सो आई एम सपोज टू चीट, दैट इज माई नेचर, ओके जस्टिफाइड. एंड माई वुमन विल बी अ वुमन विच स्टॉप्स मी फ्रॉम चीटिंग, गॉट इट, नॉट इट. सो अब ये क्या करेगा, बाहर जाके ये चीट करेगा, उसको जस्टिफाई करेगा कि ओ मैं मर्द हूँ, मैं विजुअल क्रीचर हूँ, मैं तो चीट करूंगा, राइट? यू गेट इट. He's gonna do things like that, and he's gonna get a girl who's okay with it, just like his mama, isn't it? तो आप सभी कुछ बर्बाद कर रहे हो. पहली बात तो यूजुअली इन लोग की अरेंज मैरिज होती है, मैंने ये थोड़ा देखा है. अरेंज मैरिज में तो फकअप कुछ अलग लेवल का है ना, तो क्या ही कहने उसके. तो चलो पहली बार आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, सही आदमी नहीं आपको मिल पाया, पापा मम्मी ने गलती कर दी है, किसी ने भी गलती कर दी, चलो ठीक है, हो गया जो हो गया. इसके बाद तो सुधर जाओ यार आप. चलो लव मैरिज भी मान लो अगर थी आपकी, ठीक है, शुरुआत में बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, या जो भी था आपका रिलेशनशिप था, राइट? अब अगर उसके अंदर प्यार नहीं रहा है तो क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पे? सबसे टॉक्सिक पीपल आई हैव सीन, दे से थिंग्स लाइक दिस एंड दिस गेट बाय टिल डेथ डू अस पार्ट. डू यू इवन नो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप? टिल डेथ डू अस पार्ट. Not every relationship is here to even go till death. Okay, that relationship maximum that's gonna go till death is the one you have with yourself. That one's gonna go till death. रिलेशनशिप्स यहाँ पे आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं. सब कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, राइट? हर एक चीज़ हमें सिखाने में मदद करती है कुछ ना कुछ. आपने देखा होगा, कोई अगर पैसे के लिए पागल तो उसको लाइफ लेसन भगवान पैसे के थ्रू दे देता है. कोई बच्चों के लिए पागल तो उसको बच्चों के थ्रू लाइफ लेसन दे देता है. कोई ब्यूटी के पीछे पागल, उसको ब्यूटी के थ्रू लाइफ लेसन दे देता है. क्योंकि गधे को चलाने वाले के लिए पता है कि गधे को क्या पसंद है. गधे को गाजर पसंद है, गाजर के थ्रू उसको दौड़ा लिया जाएगा. गधे को ब्रोकली पसंद है, ब्रोकली लगा दो आगे, वो फिर भाग जाएगा उसके लिए. आप वो गधा है, मैं वो गधा हूँ, और वो है चलाने वाला. उसे पता है कि आपके आगे कौन सी गाजर लटकानी है जिससे काम बनेगा, जिसके पीछे आप ऐसे भागे भागे जाओगे. कई लड़कों के लिए वो लड़के हैं, कई लड़कों के लिए वो लड़कियां हैं, राइट? क्या है, किसी के लिए वो ईगो है, एक गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्ट, IAS समथिंग. सबकी अपनी अपनी गाजर है, इसके पीछे वो भागे भागे जाते हैं, है कि नहीं? सो यही आपके लिए भी कि भगवान को यूज़ करनी होती है रिलेशनशिप हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, और हम टिल डेथ डू अस पार्ट कर लेते हैं और अपनी ऋण मार लेते हैं. रिलेशनशिप्स जब तक आपको वो पर्सन कुछ सिखा पाता है और आप उसे कुछ सिखा पाते हैं, तभी तक चलने के लिए होता है.
till the time you do have an exchange to give that is helping both of them grow. From the day you do not have any more to give to that person and he doesn't have any more to give to you, it's already over. Or even if one person, they don't have any more to give you, like for example in this case the guy doesn't have any more love to give you, toodles, bye bye, तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा. No healthy person loves back someone who doesn't love them. None. None. Not even one. No one. Even God listens only when you pray. God helps you only when you ask. Because reciprocity is a thing like that. दोनों साइड से चाहिए. आप गॉड को गाली बको और वो आपकी हेल्प करते रहे, इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, गॉड भी नहीं है, तुम क्यों हो? सो रिलेशनशिप का अपना टाइमिंग होता है. हर एक रिलेशनशिप डेथ तक चलने के लिए नहीं होती है. मैंने इस पर एक लाइव भी किया था कि रिलेशनशिप का एंड होना, फेल होना नहीं होता है. रिलेशनशिप्स आर मेंट टू एंड. these losers, these stupid people out here telling you उनका तो डिवोर्स हो गया, मेरा लव में से पूरा भरोसा उठ गया. अरे भाई, सबका रिलेशनशिप का अपना एक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है. मैं ये जो कपड़ा भी पहनी हूँ ना, इसका मेरे साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है. एक दिन के बाद एक दिन ऐसा आएगा, ये मिसप्लेस होने वाला है या ये जाने वाला है या इसको खुद मैं फेंकूंगी. उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से. तो क्या मैं रोने लग जाऊं या ये रोने लग जाए? वी आर मेच्योर, वी नो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. एक दिन के बाद अर्थ भी नहीं होगी, एक दिन के बाद ये प्लैनेट भी, it will be talked, maybe some maybe somebody, some astronaut or some, these astronomers will find out that ruins of some planet that used to be in the solar system. सब खत्म हो जाएगा. कोई भी चीज़ यहाँ अंत तक नहीं है, अंत अनंत है. हर चीज़ का यहाँ पे इसीलिए अंत है. वाह वाह वाह, क्या बात. सो क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि आपकी रिलेशनशिप खत्म हुई इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गई. जितना उसमें वर्कआउट होना था, उसमें जितना जीवन रस था, वो निकल गया, वो निचुड़ गया, वो खत्म हो गया. इसको मान लो, एक्सेप्ट कर लो, खुश रहोगे. नए रास्ते आर वेटिंग फॉर यू, नए पीपल आर वेटिंग फॉर यू. आप पुराने का पीछा छोड़ो तो ना, आप तो उसी में इतने एनग्रोस हो. आई नो टाइम लगता है, बट मेरा काम है आपको बताना कि वहाँ अब आपका कुछ नहीं रखा है. और इन द सोल ऑफ योर सोल इवन यू नो इट्स ओवर. वहाँ कुछ नहीं है. खुद से झूठ बोलती हो, डेली झूठ बोलती हो खुद से, अपने बच्चों से भी, कि वहाँ कुछ है, हम कुछ सुधार लेंगे. और वो एक मैरिज काउंसलर या कोई भी आपसे पैसे लेने के लिए वो भी झूठ बोलता है कि हाँ बिल्कुल बचाई जा सकती है. द मैन डजंट वांट टू लव यू, ही डजंट वांट टू गो एनीवेयर विद यू. मैन इज द लीडर ऑफ द रिलेशनशिप. द वे ही इज आउट, द मोमेंट ही इज आउट, इट्स आउट. अगर आपको लगे कि अरे ठीक है यार, पर क्या पता आदमी कुछ दिक्कत हो रही हो, उस वजह से प्यार अफेक्ट हो रहा हो, वो आदमी जो आपसे प्यार करता है, किसी भी दिक्कत से अगर आपकी तरफ उसका प्यार अफेक्ट होने लगा है, वो खुद जाके हेल्प ले लेगा और वो ठीक करके आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा. और चलो पता लग भी गया, इन दैट केस ऑल्सो ही इज गोना गेट दैट डन. ही हैज स्टॉप्ड लविंग यू एंड ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज ही इज ओके विद दैट. ही इज अलाउइंग दैट. ही डजंट लव यू इनफ, ही डजंट लव यू एनी मोर. एक्सेप्ट दैट. ये उसकी गलती नहीं थी कि आप रिलेशनशिप में टिल डेथ डू अस पार्ट सोच कर आए थे. ये उसकी गलती नहीं थी, ये आपका बनाया हुआ है. ठीक है. So accept the end so you can have a new beginning. मरी हुई चीज़ को खींचना बंद करो. That's it.